हॅलो फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैंडर्ड 10th मैथ्स पार्ट 2, that means geometries, third chapter circle, problem set 3. Here we are going to study the part 2 of this problem set. We divided this problem set 3 into two parts. Which one? That question number 3 to 12. क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 12 तक एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया. नाउ 13th वन इज ओमिटेड फ्रॉम योर सिलेबस दिस ईयर. नाउ सम नंबर 14 to 25, जो सम अभी है वो हम लोग देखने वाले हैं. जो ओमिटेड सम है वो बाद में. सो लेट अस सी 14th वन. ये 14th सम यहाँ पे दिया है. In 14th sum, O is the center of the circle. Here circle is there. O is the center. Then this chord PQ. ये जो chord PQ है congruent to chord RS. This chord PQ is congruent to chord RS, and this angle POR, measure angle POR, this one is 70 degree. Then find the following things. What we have to find? First one, measure arc PR. Here measure arc RS is also given 80 degree. Measure arc RS. One more thing is given. Measure arc RS is 80 degree. This arc RS is 80 degree. Then we have to find this first one, measure arc PR. अगर हम लोग फिगर देखते हैं, so this is the central angle for measure arc PR. PR के लिए central angle कौन सा है? POR. So measure of minor arc is nothing but measure of its central angle. So by the definition of measure of minor arc, what we get? This measure arc PR. So we get here measure arc PR is equal to measure angle POR. Here we can write the reason, definition of measure of arc, measure of minor arc. ये जो definition है, ये definition यूज करके हम लोग ये लिख सकते हैं. So we get this is 70 degree. So measure arc PR, यानी first answer is there. Measure arc PR is 70 degree. तो we get this arc यानी PR जो है ये हम लोग को मिला 70 डिग्री. ये दिया है 80 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री आएगा बिकॉज कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैविंग द कॉन्ग्रुएंट आर्क्स. सो आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स. सो हियर सेकंड थिंग, chord PQ is congruent to chord RS. that is given. ये दिया है हम लोगों को. अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क यानी PQ एंड RS आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. therefore that arcs are congruent. we have to find the QS. so before QS we must find this PQ. ये मिल गया. देखो RS is given 80, ये 70 हो गया. तो अगर ये अपने पास है तो तीनों का जो सम है अगर 360 में से हम लोग माइनस करते हैं देन वी गेट दैट QS. तो QS फाइंड करना है सेकंड में हम लोगों को. तो ये पहले PQ, ये जो थ्योरम है ये यूज करना पड़ेगा. कॉर्ड PQ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड RS, यानी दो कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. सो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर PQ is congruent to arc RS. reason corresponding arc of congruent chords. दो chords अगर congruent हैं then their corresponding arcs are again congruent, and therefore measure arc PQ इक्वल्स मेजर आर्क. अगर दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स देयर मेजर्स आर इक्वल, इज इक्वल टू 80 डिग्री. दोनों 80 डिग्री बिकॉज RS इज गिवन 80 डिग्री, सो बोथ आर 80 डिग्री. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन सर्कल हियर इन फिगर मेजर आर्क QS दैट वी हैव टू फाइंड. ये हम लोग को निकालना है QS.
plus major arc RS plus major arc PR and plus major arc PQ, ये चारों का सम अगर हम लोग करते हैं देन वी गेट द फुल सर्कल। ये देखो 1 2 3 और 4 सबका सम कितना 360। इसमें QS हम लोग को निकालना है, देयरफॉर मेजर आर्क QS प्लस RS मतलब 80 प्लस दिस 70 प्लस दिस 80 इज इक्वल टू 360। ये सम कर दो, 80 प्लस 80 160 प्लस 70 230। So we get major arc QS plus this 230 is equal to 360. तो major arc QS is equal to major arc QS is equal to 360 minus 230. So we get here this is 130 degree. 130 degree. So we get that second answer. Now third we have to find QSR. ये जो QSR है ये हम लोग को चाहिए अभी। This QS plus SR we get QSR. So third point, major arc QSR is equal to this major arc QS plus major arc SR। तो दोनों का सम कर दो ना। एक QS कितना मिला 130 प्लस दिस इज गिवन 80। सो वी गेट 130 प्लस 80 210। सो वी गेट मेजर आर्क QSR इज इक्वल टू 210। तो इन दिस वे वी गेट ऑल द थ्री आंसर्स। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये सेकेंड है यहां पे, this is the second one. So in this way in 14th sum we can find the measure of arcs using this different theorem. Now let us see 17th sum from problem set 3. In this 17th sum, this is the activity based sum, activity type question दिया है। So we have to complete that activity. Chord EF parallel chord GH. What is given? Chord, if you observe the figure, then chord EF parallel chord GF, ये दोनों पैरेलल है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हम लोग को? देन प्रूव दैट chord ये प्रूव करना है chord EG, ये जो है, और ये EFH, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बताना है। chord EG congruent chord FH, we have to prove these are congruent. Now proof is activity type question, so here proof is already written, we have to fill in the blanks, यानी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें ड्रॉ सेगमेंट GF, यह ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन दैट, ड्रॉ सेगमेंट GF, ये ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, पहले ही ज्वाइन किया। नाउ इफ यू ऑब्जर्व द फिगर, तो फर्स्ट स्टेप दिया है एंगल EFG, दिस वन एंगल EFG कॉन्ग्रुएंट एंगल FGH, ये दोनों एंगल, विच एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, देखो EF पैरेलल GH, और अगर ये ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ये दोनों क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये रीजन हम लोग को लिखना है। द स्टेप इज गिवन, एंगल EFG congruent angle FGH, and reason we have to write for the activity. In that activity we have to write the reason, which type of angles. So these are alternate angles, that is the reason.
सेकेंड स्टेप देखो, इफ यू ऑब्जर्व दिस एंगल EFG ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है? इंटरसेप्ट आर्क EG। तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम EFG इज इक्वल टू हाफ EG। सो वी गेट सेकेंड स्टेप एंगल EFG। नेक्स्ट स्टेप, ये जो एंगल EFG दिया है इक्वल टू व्हाट? हाफ मेजर आर्क EG, and the reason is already given. Which theorem we use? Inscribed angle theorem. Measure of inscribed angle is half the measure of arc inscribed by it, intercepted by it. So inscribed angle theorem, ये theorem से ये लिख दिया हम लोगों ने स्टेप। सो हियर दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये 3। अभी ये जो एंगल है FGH, इंटरसेप्ट विच आर्क? FH। तो यहां पे भी ये थ्योरम यूज करते हैं हम लोग, एंगल FGH इज हाफ द आर्क FH बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सो हाफ मेजर आर्क FH, ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, सेम रीजन यहां पे भी, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, हियर अगेन द सेम थ्योरम वी यूज एंड दिस इज थर्ड वन। सो फ्रॉम 1 to 3 व्हाट वी कैन राइट? अगर 1 to 3, 1 में क्या दिया है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो राइट हैंड साइड का दोनों भी कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए। राइट हैंड साइड का दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसमें हाफ हाफ अगर कैंसिल करते हैं देन वी गेट मेजर आर्क EG, यानी ये जो आर्क है मेजर आर्क EG इज इक्वल टू मेजर आर्क FH। देयरफॉर मेजर आर्क EG equals, we have to write the fill up here, measure arc FH। ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गया। रीजन है फ्रॉम 1 to 3, क्योंकि 1 में क्या दिया? ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, EFG FGH। तो EFG मतलब ये, FGH मतलब ये। अगर लेफ्ट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट है और राइट हैंड साइड भी कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए, यानी हाफ मेजर आर्क EG इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क FH। हाफ ऑफ गया तो मेजर आर्क EG इक्वल मेजर आर्क FH। रीजन इज फ्रॉम 1, 2 and 3। If two arcs are congruent then their corresponding, ये दोनों arc congruent हो गया, देखो ये और ये, तो उसका corresponding chord must be congruent। Therefore chord EG is congruent to chord FH। हियर रीजन वी हैव टू राइट, ये रीजन हम लोग को लिखना है अभी इसमें। 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी पहले इसमें हम लोगों ने क्या दिखाया? फर्स्ट, इसके पहले जो 14 सम किया, अगर 2 कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है देन करस्पॉन्डिंग आर्क्स कॉन्ग्रुएंट रहता है। अगर करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, 2 कॉर्ड आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो करस्पॉन्डिंग chords of congruent arc, 2 आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग chords भी congruent होना चाहिए। सो इन दिस वे दिस 17th sum is activity based question is completed. Now let us see 19th sum from problem set 3। प्रॉब्लम सेट 3 में से ये 19th sum दिया है। इसमें क्या है देखो, ये जो बड़ा सर्कल है उसका सेंटर है D एंड छोटा सर्कल है उसका सेंटर है C, और छोटा सर्कल का डायमीटर हो जाता है DE। सो हियर you know that theorem, the centers of when 2 circles touches internally at E then their centers and the point of contact are collinear, यानी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं E डैश C डैश D, यानी ECD मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो EC प्लस CD ये डायमीटर बन जाता है, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, एंड डायमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट द means it is a semicircle. Semicircle means this angle EAB
एंगल सबटेंडेड इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ये बड़े इसका कॉर्ड है, कॉर्ड इफ यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड दैट डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट, तो हम लोग को AE इक्वल्स AB ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे गिवन लिखना है पहले इन दिस सम, व्हाट इज गिवन, क्या क्या दिया है वो पहले लिख लेते हैं। सर्कल्स, 2 सर्कल्स दिया है, देखो सर्कल्स विथ सेंटर्स C and D touches internally at E, दोनों अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे at E, then D lies on the inner circle, D is on inner circle means on the smaller circle, जो D पॉइंट है स्मॉलर सर्कल पे है। कॉर्ड EB ऑफ द आउटर सर्कल इंटरसेक्ट, यानी कॉर्ड EB ऑफ लार्जर सर्कल ऑफ आउटर सर्कल इंटरसेक्ट स्मॉलर सर्कल इन A टू प्रूव क्या प्रूव करना है, सेगमेंट EA और AB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो सेगमेंट EA कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AB दैट वी हैव टू प्रूव, ये दोनों मुझे कॉन्ग्रुएंट बताना है। प्रूफ, सो फर्स्ट स्टेप, join EC, CD and AD, ये तीनों में ज्वाइन कर दिया, EC किया, CD किया, AD किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हियर E-C-D, हियर दिस इज द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं देन देयर सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट are collinear. Therefore, third one, this EC plus CD is equal to DE, that is the diameter of the smaller circle. So here ECD, that's why we add DE is diameter of smaller circle. That means that EAD is the semicircle, therefore this measure angle EAD is 90 degree. Therefore angle EAD equals 90 degree. रीजन लिख सकते हैं हम लोग यहां पे, एंगल inscribed in सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, ये रीजन लिख दिया यहां पे मैंने, तो EAD हो गया 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट स्टेप, कॉर्ड EB इज अ कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल, यानी लार्जर सर्कल बोलते हैं हम लोग, या आउटर सर्कल, इसका कॉर्ड हो गया। सो हियर वी प्रूव दिस EAD 90 डिग्री। EAD 90 डिग्री मतलब क्या है, सेगमेंट DA परपेंडिकुलर कॉर्ड EB, and you know that theorem, the perpendicular drawn from the chord to the center to the chord bisect the chord. So we get the property of that chord, perpendicular drawn from center to chord bisect the chord, it bisect the chord, and therefore this EA equals AD
B. That means segment EA is congruent to segment AB using that property of that chord. If we draw the perpendicular from the center to the chord, it bisects the chord. That means that chord is bisected, divided into two equal parts by this DA, because D is the center of the outer circle, और center से हम लोग अगर perpendicular draw करते हैं, then from 8th standard you studied that if we draw the perpendicular, it divides the chord into two equal parts, bisect the chord. तो ये chord is bisected by this one, यानी EA equals AB. So we get our result, segment EA congruent segment AB. So here that 19th sum is complete. Now let us see sum number 20 from problem set 3. Here in this question number 20, what is given? In figure, segment AB is the diameter. ये segment AB diameter दिया है. Then O is the center of circle. Then C is a point on the circle. Angle ACB is given, and this bisector of this angle ACB, यानी this is bisector. तो ये दोनों congruent बन गया, देखो यहाँ पे. तो bisector intersect the circle in D. Then to prove this AD equals DB, ये हम लोग को प्रूव करना है. So what is given here? Write the given. तो गिवन में क्या दिया है, देखो. सेगमेंट AB is diameter. Segment AB is diameter. O is center, and AD bisect angle ACB. Then to prove is congruent to segment BD, and this is activity based question. Actually there are two methods, but if it is activity based then we have to write that same method. जो activity में दिया है वही हम लोग को लिखना पड़ेगा. तो using that question, यानी यह activity कैसे complete करते हैं, देखो अभी. Because it is activity, so we have to use that method only. So here draw ray OD, तो हम लोगों ने ऑलरेडी वो ड्रॉ किया है. यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप इज गिवन, ड्रॉ रे OD. ये एक्टिविटी है दिया है. सो हियर एंगल ACB, इफ यू ऑब्जर्व द फिगर, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल. यहाँ पे हम लोग को हिंट दे रखा है, यानी रीजन दे रखा है. ये अगर AB डायमीटर, देन ACB इज अ सेमी सर्कल. सो एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ACB 90 डिग्री हो गया. एंगल ACB इक्वल्स 90 डिग्री. और यहाँ पे जो रीजन है, दैट रीजन इज ऑलरेडी गिवन. एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल. तो यहां से पता चल जाएगा आप लोगों को कि क्या लिखना है. ये रीजन पे ध्यान रखना है. इफ वी रीड दैट रीजन वी गेट द आंसर. तो ये CD बाइसेक्टर हो गया, तो एंगल DCB ये जो है ये कितना आएगा, देखो 45 डिग्री. ये हाफ कितना आएगा, 45 डिग्री. ये जो है ये 45 और ये भी 45 डिग्री. सो हियर एंगल DCB इक्वल्स 45 डिग्री, बिकॉज ये बाइसेक्टर दिया है. यहां पे रीजन CD बाइसेक्ट एंगल C, CD बाइसेक्ट एंगल ACB, पूरा लिख देते हैं हम लोग. तो ये DCB हो गया 45. आगे क्या दिया है देखो. सो मेजर आर्क DB, ये DCB 45 है, तो मेजर आर्क DB क्या आएगा, ट्वाइस दैट. क्योंकि ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेजर एंगल DCB इक्वल्स हाफ मेजर आर्क DB. तो 45 इक्वल्स हाफ मेजर आर्क DB, तो मेजर आर्क DB इक्वल्स ट्वाइस मेजर आर्क.
that major angle DCB. Therefore here we get major arc DB इक्वल्स कितना आएगा 90 डिग्री. इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज किया है यहां पे हम लोगों ने, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. सो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम दिस 90 डिग्री. देयरफॉर ये जो है ये आर्क अगर अपना 90 हो गया तो ये जो एंगल है देखो सेंट्रल एंगल ऑफ दैट आर्क दिस इज आल्सो 90 डिग्री by the definition of measure of arc. Therefore measure angle DOB equals 90 डिग्री. यहाँ पे हम लोग को उसका लिखना है फिलअप 90 डिग्री. Here definition of measure of arc, definition of measure of arc. तो ये अगर बुक में हम लोग को एक्टिविटी दी है तो वैसे ही लिखना है, वही स्टेप लिखना है, ऐड मत करो उसमें. लेकिन दूसरा मेथड भी है, मैं आप लोग को खाली मेथड वो बताऊंगा. सेगमेंट OA कॉन्ग्रुएंट, ये दो सेगमेंट OB रीजन हम लोग को लिखना है इसमें फिलअप में, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सो दीज आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. एक ही सर्कल का रेडियस है तो ये so line OD is perpendicular bisector of इससे इजी मेथड है एक बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB का ये क्या बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एंड देयरफॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स. यानी सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम. यहां पे क्या यूज किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम. ये मेथड घुमा फिरा के दिया है इन्होंने. यहाँ पे आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर नहीं आता है तो देखो एक यहाँ तक आने के बाद अल्टरनेटिव मेथड ट्रायंगल AOD ट्रायंगल BOD लो. इसमें AO कॉन्ग्रुएंट BO ये रेडियस है, OD कॉन्ग्रुएंट OD है, ये कॉमन साइड है. BOD 90 है तो AOD भी 90 होना चाहिए, डायमीटर दिया है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया. तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन गया, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया. और उससे भी इजी मेथड ये जो एंगल AC भी दिया है इसका क्या है CD बाइसेक्टर है. CD बाइसेक्टर यानी एंगल ACD, ये देखो यहां पे मैं लिखता हूं, ये फर्स्ट स्टेप आएगा अपना एंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCD. बाइसेक्टर दिया है देखो तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बन गया ACD BCD. लेकिन ACD बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम इज हाफ मेजर आर्क AD इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा ये इक्वली लिखते हैं हम लोग, हाफ मेजर आर्क BD. ये इंस्क्राइब एंगल थ्योरम यूज किया, ये दोनों साइड का हाफ गया तो मेजर आर्क AD इक्वल्स मेजर आर्क BD बन जाता है. ये दोनों आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, देयरफॉर कॉर्ड AD कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड BD, ये दोनों कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट बन गया. यानी सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट BD. दिस इज अल्टरनेटिव मेथड. ये मेथड अगर हम लोग को डायरेक्टली सम दिया है कि ये प्रूव करो बाबा, ये अगर प्रूफ के लिए है देन यू कैन यूज दैट मेथड. अगर एक्टिविटी है तो जो दिया है एक्टिविटी में वही लिखना है. हियर इट इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट दिस वन. अगर ओपन क्वेश्चन दिया आप लोग को तो ये कर सकते हैं आप लोग. सो हियर दैट 28th सम इज कंप्लीटेड. ये 20वां सम कंप्लीट हो गया. लेट अस सी 21st sum from problem set 3, question number 21. What is given in this figure? O is the center and MN is the chord of a circle. So here segment
एम एन, क्या क्या दिया है लिख लेते हैं पहले। सेगमेंट एम एन इज chord of a circle with center O, जिसका सेंटर O है उसका एक कॉर्ड हम लोग को दिया है। देन उसका लेंथ दिया है mn इज इक्वल टू 25। ये जो कॉर्ड mn है इसका लेंथ दिया है 25। देन L इज अ पॉइंट ऑन कॉर्ड mn पे एक L पॉइंट दिया है सच दैट कैसा है कि ml इज इक्वल टू 9, दिस ml इज इक्वल टू 9 एंड डिस्टेंस OL, ये जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो गिवन 2.5, देन सॉरी इट इज 5 नॉट 2.5, OL is 5. Find the radius of circle. Find radius of circle. हम लोग को रेडियस इसका फाइंड करना है अभी। तो कैसे मिलेगा देखो, हियर फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ, क्या करना है कि हम लोग को एक OP परपेंडिकुलर, ये कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सो फर्स्ट स्टेप, draw OP perpendicular chord MN and join ON। ON join कर दिया तो ON इज इक्वल टू क्या, रेडियस। ON इज इक्वल टू रेडियस, हम लोग को फाइंड करना है अभी। Now you know the theorem, a perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord। अगर हम लोगों ने OP परपेंडिकुलर chord ड्रॉन किया तो सेकंड हम लोग यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द chord, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर to the chord bisect the chord, यानी ये P पॉइंट कॉर्ड को दो हिस्से में बांट देगा इक्वल। therefore we get this MP is equal to PN is equal to half MN। तो हाफ MN मतलब हाफ इंटू 25, so here we get 12.5 सेंटीमीटर, सॉरी यूनिट, सेंटीमीटर नहीं दिया है, 12.5 यूनिट्स। तो अभी हम लोग को MP मिल गया। देखो ये जो MP है ये MP 12.5 हो गया, इसमें से ये ML 9 है तो ये निकाल सकते हैं हम लोग, और ये OL कितना दिया है, 5 दिया है, तो OP आएगा अपने पास। OP आएगा तो ये ट्राइंगल में अगर हम लोग पाए, ये जो है 12.5 हो गया PN, और ये मिलेगा, ये अगर हम लोग को मिलता है देन इसमें पाइथागोरस यूज करके हम लोग को क्या निकालना है, उसका रेडियस निकालना है। देन थर्ड स्टेप देखो अभी, दिस MP इज इक्वल टू ML प्लस PL। तो MP कितना अभी 12.5 ये निकाला हम लोग, इज इक्वल टू 9 प्लस PL, यानी PL कितना आएगा 12.5 माइनस 9, यानी 9 गया तो 3.5। सो PL इज इक्वल टू 3.5। अभी PL 3.5 आ गया तो ये जो ट्राइंगल है देखो छोटा OPL में अपने पास दो साइड उसका है, ये 5 और ये 3.5, ये जो साइड है 3.5, ये जो है 5, तो ये साइड हम लोग अभी OP निकाल सकते हैं इसमें पाइथागोरस यूज करके। तो यहाँ इन ट्राइंगल OPL, एंगल OPL इज 90 डिग्री बिकॉज वी ड्रॉन द परपेंडिकुलर, OP परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है,
तो इसमें ओ एल स्क्वायर पाइथागोरस अगर यूज करते हैं देन ओ पी स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर, तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। यहां पे रीजन लिख दिया हम लोगों ने, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू, ओ एल का वैल्यू दिया है अपने पास 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, ये निकालना है, प्लस 3.5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 5 स्क्वायर माइनस दिस 3.5 स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, 5 प्लस 3.5 एंड 5 माइनस 3.5, तो ये क्या बन जाता है, 5 प्लस 3 8.5 हो गया, 8.5 ये और ये 1.5, इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं 15.75। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 12.75, ये ओपी स्क्वायर का वैल्यू है अपने पास। अभी ओपी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ये ओपी स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट डालेंगे, नो नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो हम लोग को अभी ये निकालना, इसमें पाइथागोरस यूज करो वापिस। सो यहां पे ही लिखते हैं हम लोग, फिफ्थ स्टेप, इन ट्रायंगल OPN, ये OPN में अगेन एंगल OPN 90 डिग्री है, देयरफॉर दिस ON स्क्वायर मतलब रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, यानी OP स्क्वायर कितना, 12.75, ये तो ऑलरेडी है अपने पास, प्लस ये है 12.5 ब्रैकेट स्क्वायर, 12.75 इसका स्क्वायर प्लस ये 12.5 का करते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 156, सो 156.25। तो इसका सम करो, 5 प्लस 5 0, 7 प्लस 2 9 0, 6 169, therefore r square is equal to 169, मतलब r is equal to 13 units, therefore radius of circle is 13 units. So in this way we get the radius of circle. तो थोड़ा घुमा फिरा के है, लेकिन इजीली स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग जाओगे, ये स्क्वायर बराबर करना है तो आप लोग को मिलेगा आंसर। सो हियर रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज 13 यूनिट्स। नाउ लेट अस सी 23rd सम फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 3। व्हाट इज गिवन इन दिस सम, क्या क्या दिए है वो पहले लिख लेते हैं, गिवन एंड टू प्रूव, देन ट्राई टू राइट द प्रूफ। सो हियर इन फिगर 2 circles intersect, these are intersecting circle each other point M and N, ये दोनों पॉइंट दिए। देन सेकेंड्स drawn from M and N, drawn from M and N, ये दोनों पॉइंट में से 2 सेकेंड ड्रॉ किया है, इंटरसेक्ट द सर्कल्स S एंड ये दूसरा सेकेंड है ये PQ रिस्पेक्टिवली, यानी M में से जो ड्रॉ किया है वो RS में इंटरसेक्ट करता है, N में से ड्रॉ किया PQ में से इंटरसेक्ट करता है। देन दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव, सेगमेंट SQ पैरेलल RP, देन टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अभी, सेगमेंट SQ पैरेलल सेगमेंट RP, ये हम लोग को प्रूव करना है। यू नो व्हेनेवर वी हैव टू प्रूव 2 साइड्स पैरेलल,
two lines parallel, then you know इंटीरियर एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, या ये कोई टेस्ट हम लोग को यूज करना पड़ता है. नाउ फर्स्ट पॉइंट, ज्वाइन दिस MN. ये अगर हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया इसमें, लेकिन पहले हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा प्रूफ में. सो फर्स्ट राइट इट इज, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ड्रॉ सेगमेंट MN. तो MN ड्रॉ कर दिया मैंने. MN ड्रॉ करने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल है, देखो ये पहला क्वाड्रिलेटरल MRPN, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका AMRPN, ऑल द 4 vertices आर ऑन द सर्कल. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो सेकेंड क्वाड्रिलेटरल MRPN is cyclic quadrilateral. ये cyclic quadrilateral हो गया. You know the property of cyclic quadrilateral. इसका जो ये एंगल है देखो MNQ, ये जो MNQ है मीन्स एक्सटीरियर एंगल, दिस MNQ is congruent to this one. एक थ्योरम जो है अपना, वो थ्योरम हम लोगों ने यूज किया. सो हियर वी गेट एंगल MNQ इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल MNQ इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल MRPN विच इज साइक्लिक. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो उसमें क्या लिख सकते हैं फिर, एंगल MNQ इज कॉन्ग्रुएंट टू और इक्वल टू मेजर एंगल MNQ इक्वल्स टू मेजर एंगल MRP. हियर प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कॉन्वर्स ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम. दिस इज द कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम. ये कोरोलरी है कि एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट उसका जो एडजेसेंट इंटीरियर है उसके अपोजिट एंगल से, यानी ये एक्सटीरियर हो गया, ये इसका एडजेसेंट इंटीरियर उसका अपोजिट एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गया. नाउ दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 1. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसको मैं स्टेटमेंट नंबर 1 लिखता हूं यहां पे. अभी आगे का स्टेप देखो, ये दोनों है, ये क्वाड्रिलेटरल भी साइक्लिक है तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री. देन सेकंड स्टेप, क्वाड्रिलेटरल MNQS, it is also MNQS is also cyclic quadrilateral. ये भी साइक्लिक है बिकॉज ऑल 4 vertices, डेफिनेशन जो है उसके हिसाब से ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. 4 vertices आर ऑन द सर्कल. नाउ इसका अपोजिट एंगल देखो, MNQ और MSQ, ये दोनों जो है ये और ये सप्लीमेंट्री है बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. अपने पास थ्योरम है, एंगल MNQ प्लस एंगल MSQ इज 180 डिग्री. इसको 2 लिखा और यहां पे थ्योरम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ये थ्योरम हम लोगों ने यूज किया. अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. अभी MNQ जो है ये और MRP दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो फ्रॉम 1 इसमें मैं इसका वैल्यू डालता हूं. अभी इंस्टेड ऑफ दिस MNQ राइट दिस वन, द एंगल MRP प्लस एंगल MSQ इज 180 डिग्री. ये कहां से आया, तो यहां पे रीजन लिख दिया, फ्रॉम 1. नाउ MRP इसका नाम जो है MRP कैन बी रिटन एज SRP. सो एंगल
एस आर पी। देखो ये एम आर पी है, इसको मैं क्या रीड किया, एम एस आर पी प्लस एंगल, ये एम एस क्यू है, इसको क्या रीड करेंगे, आर एस क्यू इज इक्वल टू 180। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। ये कौन सा है, पेयर हो गया। देखो ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल, एंड देयरफॉर दिस सेगमेंट और लाइन आर पी पैरेलल सेगमेंट एस क्यू बाय विच थ्योरम, इंटीरियर एंगल टेस्ट। By interior angle test, a pair of interior angle is supplementary, then these lines are parallel. So by this theorem, by this test, we get this RP and this are parallel because this pair becomes supplementary. ये दोनों का सम जो है, इसका और इसका 180 हम लोगों ने बताया, यानी इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, therefore these lines are parallel. तो ये हो गया अपना 23rd sum. So let us see 25th sum, question number 25 from problem set 3. In this sum, what is given? Triangle ABC is the given triangle. In triangle ABC, this AD perpendicular BC, BE perpendicular AC and CF perpendicular, means these are the altitudes, perpendiculars. Then O is the point of intersection of that altitudes, means this is the orthocenter. Then we have to prove that is the O is the इन सेंटर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है उसको बोलते हैं इन सेंटर। एंड ये जो अल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ऑल अल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, दीज आर कॉन्करेंस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड्स, ये अल्टीट्यूड्स है, हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब अल्टीट्यूड, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स इज ऑर्थो सेंटर, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर ऑफ थ्री एंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। तो मुझे क्या प्रूव करना है, इट इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल DEF। तो पहले मैं ट्राइंगल DEF निकाल लेता हूं यहां पे। तो इन दिस वे वी गेट ट्राइंगल DEF। तो प्रूफ में पहले हम लोग को लिखना है ड्रॉ DE देन EF एंड DF, ये ज्वाइन कर दिया तो वी गेट ट्राइंगल DEF। हियर दिस AEO एंड AFO परपेंडिकुलर है, मतलब ये अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है AEOF, ये क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट सेकेंड स्टेप यहां पे इन क्वाड्रिलेटरल AEOF, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। AEOF, इसमें एंगल AEO इज 90 डिग्री एंड एंगल AFO इज अगेन 90 डिग्री, बोथ रीजन गिवन, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है। देयरफॉर एंगल AEO प्लस एंगल AFO दोनों का अगर सम करते हैं तो 90 प्लस 90 यानी 180 हो गया। एंड अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल AEOF इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसका रीजन है कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ये कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हम लोगों ने यहां पे यूज किया। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री देन इट इज साइक्लिक। तो फर्स्ट हम लोगों ने AEOF ये जो है ये साइक्लिक प्रूव कर दिया। ये अगर मैं एंगल लेता हूं, एंगल FEO मतलब ये एंगल, और एंगल FAO ये एंगल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये सर्कल बन गया, समझो यहाँ पे ऐसा ये सर्कल बना दिया हम लोगों ने, डॉटेड में बना देता हूँ। देखो आप लोग को सब थोड़ा समझ में आ जाएगा, फिर ऐसा ये सर्कल बन जाएगा। देखो बिकॉज इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये ऐसा सर्कल बन गया। तो सर्कल पे हम लोग अगर ये पॉइंट देखते हैं FEO और FAO आर द एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, एक ही आर्क में दोनों एंगल है, मतलब दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अपना नेक्स्ट स्टेप रहेगा
थर्ड स्टेप, एंगल FEO is congruent to angle FAO. रीजन है एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। अभी देखो ये जो सेगमेंट AB है, ये सेगमेंट AB E पॉइंट पे एंगल AEB यानी और D पॉइंट पे एंगल ADB 90 डिग्री, दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का दो कॉन्वर्स आप लोगों ने देखा है। एक कॉन्वर्स है अगर अपोजिट एंगल्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो ये साइक्लिक बन गया, तो यहां पे हम लोगों ने वो यूज किया। अभी देखो ये जो AEDB ये क्वाड्रिलेटरल पे ध्यान दो, अभी क्वाड्रिलेटरल AEDB ये भी साइक्लिक है। कैसे? ये जो AB सेगमेंट है, सेगमेंट AB सबटेंड्स एंगल AEB 90 डिग्री और ADB 90 डिग्री, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, देन दैट AEDB आर साइक्लिक, कौन साइक्लिक पॉइंट्स। तो थर्ड पॉइंट हम लोग यहां पे लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सॉरी फोर्थ, एंगल AEB इक्वल्स एंगल ADB इक्वल्स 90 डिग्री, ये तो दिया है। देयरफॉर एंगल AEB is congruent to angle ADB and therefore this segment AB जो segment है that subtend congruent angle at E and D, then AEDB are concyclic, therefore points AEDB are concyclic, यानी ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। कॉन्साइक्लिक मतलब क्वाड्रिलेटरल AEDB इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी देखो अगर ये 4 पॉइंट में से एक सर्कल पास होता है, ऐसा एक हम लोग ऐसा अंदाजे से सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखो ये अगर एक सर्कल हम लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया, बिकॉज दीज आर कॉन्साइक्लिक, तो यहां से एक सर्कल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है देखो, ये जो एंगल है, ये एंगल BED, ये जो एंगल है देखो, ये एंगल और एंगल दिस BAD, ये दोनों एंगल BED और BAD यानी एंगल BED congruent angle BAD, these are the angles inscribed in same arc। ये जो सर्कल मैं बनाया अभी देखो, ये इसमें ये जो दो आर्क है, ये एक और ये दो, लेकिन ये जो एंगल है ये इससे भी कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों क्या हो गया अभी कॉन्ग्रुएंट बन गया। तो इसको मैं नंबर देता हूं, अभी इसको एक नंबर दे देते हैं, ये स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। नाउ ऑब्जर्व दिस स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो 1 क्या है, FEO, ये देखो 1 FEO और FAO ये कॉन्ग्रुएंट है, और यहां पे देखो BED और BAD मतलब क्या है, सेम। BAD को हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो BED कैन बी रिटन एज OED, देयरफॉर एंगल OED इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जो BAD है, उसको लिख सकते हैं FAO। ये हो बन गया अपना सेकंड स्टेटमेंट। तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं, BAD का नाम चेंज कर FAO, इसका कंपेयर करो तो इसमें ये FAO, इसमें भी FAO, तो FEO मतलब ये एंगल और OED मतलब ये एंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी गेट, एक और दो से हम लोग पता क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल FEO मतलब ये एंगल देखो FEO यहां तक, और ये OED is congruent to angle OED, that means that ray
EO bisect angle FED. Therefore, ray EO bisect angle FED. तो ये एक बाइसेक्टर हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ऐसे ही सेम मेथड करके हम लोग को ये बाइसेक्टर प्रूव करना है। यहां पे प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे सिमिलरली we can prove what this ray OF or segment FO bisect FO and एक साथ लिख देते हैं FO and this DO bisect angle, which one? EFD and angle FDE respectively, and this is the point of intersection of bisector. ये bisector बन गया है bisector में, therefore point O is in center of triangle DEF. तो DEF का इन सेंटर इस तरह हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये बाइसेक्टर प्रूव किया, सिमिलरली ये भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, तो point of concurrence of angle bisectors is called in center. So in this way we can prove this point O, which is the orthocenter of triangle ABC, is in center of that triangle FED. So here this 25th sum is completed. So friends, here that problem set 3 part 2, यानी इसमें हम लोग कवर किया सम नंबर 14 टू सम नंबर 25, यानी क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 25। ये साल कुछ एग्जाम्पल्स कम किए इसलिए वो हम लोगों ने नहीं लिए। फॉर एग्जाम्पल सम नंबर 13 नहीं लिया है, जो 15 16 नहीं है, 24 नहीं है। तो जो सम से मैं आप लोग को सब दिखाया। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ भी डाउट है सर्कल के रिगार्डिंग, यानी प्रॉब्लम सेट 3 या सर्कल, देन राइट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू लाइक द वीडियोस, please subscribe the channel and like the video and share these videos to your friends.